Today we are going to see uh, law of reflection by the wave theory. Similar to the previous one, this is law of reflection by Huygens wave theory. So this is the surface of common surface of two medium 1, medium 2, and this is the plane wavefront, incident plane wavefront AB. All right, and I the angle of incidence with the surface here, and angle of incidence of the plane wavefront with the surface. And speed of light in the medium 1 is v1, speed of light in medium v2 is medium 2 is v2, which is less than v1. It means this is denser medium. ठीक है, denser है ये. PP dash surface of surface separating two media 1 and 2. ये surface. V1 and V2 are the light in two media. AB is the incident wavefront moving in the direction of A dash. ऐसे आ रहा है. ठीक है. I the angle of incidence of plane wavefront with the surface. Tau is the time taken by wavefront to travel the distance BC. This one. तो tau time है तो ये distance BC will be equal to V1 into tau will be equal to BC. BC will be V1 into tau. है ना? Now to determine the refracted wavefront, ये वाला wavefront determine करने के लिए this one, what we have to do, draw the sphere of radius V2 tau, which will be equal to this much. ऐसे sphere draw करो. Okay. And join C tangential to this sphere, which will meet at point E, similar to the previous one. Join CE tangent to the sphere at E. CE will be the refracted wavefront. ये जो है ना C up to here. ये नहीं होगा, आगे का नहीं है. Up to here, up to E. ठीक है, up to here is the refracted wavefront. Now R is the angle of reflection of plane wavefront. ये वाला R with this surface PP dash. ठीक है, तो ये हमें अभी प्रूव क्या करना है, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है. sin I by sin R is equal to n/1. तो now you see these two triangles, right angle triangle. एक तो ये sin I will be how much? Opposite upon hypotenuse. Sin R will be opposite AE upon hypotenuse. So sin I is opposite is B V1 tau upon AC. Sin R में opposite is this V2 tau upon AC. AC the hypotenuse. Divide कर देंगे तो AC will get cancelled और tau will also get cancelled. So V1 by V2. Since V is C by N and the refractive index of medium, so V1 by V2. C V inversely proportional to N. So V1 by V2 will be N2 by N1, that is N21. तो यहाँ पे N21 लिख देंगे, that comes here. Okay, so this is how the law of reflection is proved with the help of Huygens wave theory. So this is also important derivation frequently asked in the board examination. Either law of reflection or law of refraction, दोनों में से एक derivation is frequently asked in the board examination.
All right. क्लियर? तो इसमें हमें we have to make same time interval में how much light travels in this medium, that will be v2 tau, that will be a, इतने स्फीयर, इतने रेडियस का स्फीयर बना के जैसे ज्वाइन कर देंगे, तो that will be your reflected wavefront, and rays are normal to the wavefront, ये rays है normal है ये wavefront पर, और इसमें ये normal होगा ये एंगल, this will be hypotenuse of both the triangles. So ultimately we have to prove sin I by sin R is equal to n to 1. Easy this is. Clear? So this derivation is important for board's examination. Now we'll do some related points we are going to see in this. इसमें हमें रेशियो ऑफ द वेव फ्रंट, ये जो विड्थ है वेव फ्रंट उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, या फिर एक और पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, रेयर सरफेस में जब इंटरेक्ट कर रहा है तब देखते हैं रिफ्लेक्शन एट रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में जाएगा तो दिस डिस्टेंस विल बी मोर नाउ, v2 is greater in same time interval, v2 is more, so you will get the bigger sphere like this. So join CE tangentially to this sphere, so this will be your reflected wavefront. तो रेयर मीडियम में थोड़ा सा ये डिस्टेंस बड़ा दिखाना है, that's all, otherwise things remain same, but there is one limitation in this, in case if I is greater than IC, ये जो एंगल है ये वाला, it greater than IC, so TIR will take place here. We will not get this reflected wavefront. Due to TIR, we may get reflected wavefront previous to that, the previous derivation. If I is greater than IC, there will not be reflection. We have reflection called TIR. Already we have seen in the ray optics. So this is the slightly difference if rays goes or wavefront goes into the rarer medium. Otherwise things will be same up to I less than IC, sin I by sin R will be n to 1. If it is greater, then reflection TIR will take place. We will not get that refracted wavefront. So this point you have to remember. ठीक है, तो अगर कंडीशन लिख के आ गई भाई रिफ्रैक्शन एट द रेयर मीडियम करना है तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देना, ये एंगल बड़ा दिखाना. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, विड्थ किसकी ज्यादा होगी, दिस इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी मोर वाइडर और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी मोर वाइडर, तो उसका हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन बना लेते हैं, देन वी कैन राइट व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द वेव फ्रंट टू width of the reflected wavefront to that of incident wavefront, इसका और इसका रेशो. तो ये ट्राइंगल में AB will be AC cos I, एंगल के साथ की जो साइड होती है cos आता है उसमें, एंड CE ये वाली will be AC cos R. दोनों को डिवाइड कर दो, AB
upon EC. Ratio of incident wavefront पहले लिख देते हैं. Ratio of incident wavefront to the refracted wavefront. Sequence में हमने incident wavefront लिया. Ratio of incident wavefront to the refracted wavefront. ठीक है. तो AB upon CE will be cos I by cos R. So if this is the denser medium, R will be less. If second medium is denser, then R will be less than I. So cos R will be greater than cos I. तो ये टर्म बड़ा है तो ये EC will be bigger. EC will be bigger than AB. Refracted wavefront will be refracted wavefront will be wider if R is greater than, R is less than I, cos R is greater than cos I, therefore this is greater than this, therefore this will be greater than this. ठीक है. तो EC will be greater than AB. तो wider wavefront मिलेगा जब denser में जाएंगे and rarer में opposite हो जाएगा and vice versa. When it is rarer, ये वाला केस है देखो, तो ये इसकी width कम हो जाएगी. This is more wider, this is less wider when we enter into rarer medium. Second केस में rarer में narrow हो जाएगा, denser में wider हो जाएगा. ठीक है. denser में यहाँ D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है. rarer में 2 बार R आ रहा है. Here also we are getting R twice R. All right, बोलो कोई डाउट है? कितना है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता है. जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कैलकुलेशन भी करना है. तो if width of the refracted wavefront is in the medium of refractive index n is √2 times that of wavefront in the vacuum. वैक्यूम में जो है उसका ये √2 times है. When it is incident at angle 60 degree, ऊपर जो फार्मूला था AB upon EC is equal to cos I by cos R. EC is √2 times of AB. AB will go. Cos I is 60. Cos R कितना आ जाएगा? Cos R will be 45 degree. Cos R आ गया, ये 45. तो N is equal to sin I by sin R से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे. पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लिया रेशियो ऑफ विड्थ से, देन स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल लिया. All right, this can be important question because in this we have to find out the width. We have to remember the ratio of the width of the incident wavefront and reflected wavefront. Then only we can solve it. Clear to all? Yes, sir. So now we are going to see, okay, some questions we are going to see of the wave optics chapter के chapter number 10 के पहला क्वेश्चन देखते हैं. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on the water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? बोलो.
इसमें जब चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड में तो सेम रहेगा, मीडियम सेम है, तो वेवलेंथ तो सेम ही रहेगा फर्स्ट पार्ट में. लैम्डा विल बी 589 नैनोमीटर, सेम. नो चेंज. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बोलो? हाउ टू गेट द फ्रीक्वेंसी? Speed of light is equal to f into lambda. C कितना होता है? C in air and vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we know C. Lambda is also known, nano means 10 to the power minus 9. तो F आ जाएगा. And refracted light का क्या होगा? Lambda dash will be lambda upon n, 1 upon n times होगा. n कितना होगा? 1.33 दिया है. Remains same. It is a property of the source. And speed of light C dash will be f lambda. Okay, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, f lambda से निकाल लो, या v will be c upon n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो स्पीड इन दैट मीडियम कम्स. गॉट इट? फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज. क्लियर? तो वेवलेंथ एंड स्पीड in the other medium can be calculated by dividing by refractive index of that medium. And frequency, whatever you are calculating in the first medium, that will remain in the second medium, doesn't change with the change of medium. ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. किसी भी मीडियम में निकाल ली हमने, वैक्यूम में, एयर में, बाकी मीडियम में लाइट जाएगी तो वही रहेगी. और वेलोसिटी एंड वेवलेंथ और स्पीड एंड वेवलेंथ फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज हो जाता है. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड और उतना ही कम वेवलेंथ दूसरे मीडियम में. ऑलराइट, तो देख क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? फिर से सेम, v is equal to c by n. Is the speed of light in glass independent of color of light? Yes or no? No. C is inversely proportional to n, and n is inversely proportional to v is inversely proportional to n, n inversely proportional to lambda. Lambda means colors, तो v directly proportional to lambda. रेड की ज्यादा होगी, रेड इज मोर वेवलेंथ. फॉर रेड स्पीड इज मोर. फॉर रेड मीडियम इज रेयर. आई टोल्ड यू, रेड रेयर से याद कर लो. रेड जो है रेयर है, रेड कलर इज, फॉर रेड कलर मीडियम इज रेयर. आर स्टैंड फॉर रेड और आर स्टैंड फॉर रेयर. बहुत सारे आर आ रहे हैं ना, रेड में भी आर आ रहा है और रेयर है ना. स्पीड, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, तो रेड में, रेड कलर के लिए मीडियम रेयर जैसा बिहेव करता है. आर 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 आर. वायलेट के लिए डेंसर, वायलेट स्लो हो जाएगी. विच ऑफ द टू कलर्स, रेड और वायलेट, ट्रेवल स्लोअर? क्या आंसर होगा? वायलेट.
वायलेट का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इजी क्वेश्चन है। देखो, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स व्हिच इज सिमिलर टू द sound waves in the 11th standard, waves, mechanical waves in the which we have seen in the 11th standard। वहां पे हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैसे तो वेक्टर सम को ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, शॉर्ट में हम एसपी लिखेंगे, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट व्हाट, वेक्टर सम। इसमें किसका वेक्टर सम कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। सपोज दो वेव्स एक मीडियम में चल रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों के वाइब्रेशन अप है तो सिंपली एडेड अप, और ये दोनों के वाइब्रेशन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 इज बिगर y2 इज स्मॉलर, तो इतना बचेगा बस। इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो थोड़ा सा बचेगा, दोनों इक्वल होंगे तो फ्लैट हो जाएगी ये सरफेस। और उसके बाद ये वाली वेव इधर आ जाएगी, ये आगे निकल आएगी, ये वाली आगे चली जाएगी। यहाँ पे देखो, ये इसमें भी ऐसा होगा, ये थोड़ी देर के बाद ये वाली इधर पहुंच जाएगी, और ये छोटी वाली वेव इस तरफ चली जाएगी। यहाँ पे इंटरेक्ट करती है उस समय सिंगल दिखती है। तो दिस इज व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन टू वेव्स मूविंग इन अ मीडियम interact with each other, then resultant displacement is vector sum of individual displacements. If resultant displacement increases, then it is constructive superposition principle, SP. If resultant displacement decreases, then it is destructive superposition principle। तो ये वाला कंस्ट्रक्टिव हो गया, और यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गया, ये इतना रह गया, so this is destructive superposition principle। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में you can write this much only। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम इन दिस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में डिक्रीज हो जाता है। अपोजिट फेज में होते हैं ना दोनों वेव्स, इट विल गो डाउन। क्लियर, आर यू गेटिंग इट? तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे अभी हम लोग। एप्लीकेशन विल बी इन द फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे हम लोग। कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। दो सोर्सेज जो है कोहेरेंट सोर्सेज उनको बोलेंगे। इफ वेव कमिंग फ्रॉम देम ऑलवेज मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर दोनों से वेव्स आ रही हैं, है ना, और कहीं पर मीट कर रही, सपोज यहाँ से एक वेव आई, एक इस सोर्स से वेव आई, ऐसे यहाँ पे मिली, इस सोर्स से आई, यहाँ पे मिली। यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर 0 है तो 0, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, 180 है तो 180। इट शुड नॉट चेंज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इवन। So if it is possible, then these sources will be called coherent sources। Coherent sources of light can be obtained from the single source of light। एक ही सोर्स ऑफ लाइट से हमें कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था? थॉमस यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया। एक सोर्स लिया, उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखा, उसमें होल कर दिया, यहां से वेव्स निकली, और फिर उसके सामने उसने एक और कार्डबोर्ड रखा, उसमें से दो होल कर दिए, तो उसमें से दो वेव्स निकलेंगी।
वो आगे जाके कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट पे इंटरेक्ट करती, अलग अलग पॉइंट पर उनकी वेव्स जो है सिर्फ डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इंटरेक्शन करती। तो जहां पर भी इंटरेक्ट करती है वहां पर हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इंडिपेंडेंट सोर्स से कभी नहीं बना सकते, बिकॉज इंडिपेंडेंट सोर्स होगा ना तो उनकी वाइब्रेशन के थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बिकॉज वाइब्रेशन इज एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। एटॉमिक वाइब्रेशन से लाइट आती है ना, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता ही है इंडिपेंडेंट सोर्सेज में, चाहे वो आइडेंटिकल क्यों ना हो। तो सेम सोर्स से बनाना पड़ता है। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से हमें दो सोर्सेज बनाने पड़ते हैं। ये सोर्स S1 हो जाएगा, यहाँ से लाइट निकलेगी, ये सोर्स S2 हो जाएगा। तो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे और सिंगल सोर्स से बनाए थे। उसने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया और उससे फिर दो सोर्सेज बनाए, यहाँ से दो वेव्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो सेम सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी, फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। अगर सिंगल सोर्स से बना रहे तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ विल आल्सो बी सेम, फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी सेम। बट मैंडेटरी कंडीशन क्या है? दे शुड मेंटेन always constant phase difference at any point where they meet, where these two waves meet from coming from these sources, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो कोहेरेंट सेम हो गई। नो, उनके बीच का उनके से जो वेव आ रही है और कहीं पर मिल रही है, दे आर इंटरेक्टिंग समवेयर, सुपर इम्पोजिंग समवेयर, तो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा हो गया कोहेरेंट सोर्सेस का डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सिंगल सोर्स से होते तो वेवलेंथ भी सेम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है बाय डिफॉल्ट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी क्या होती है? वेव की इंटेंसिटी जो है, हाउ डू वी डिफाइन द इंटेंसिटी? इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। पावर डिवाइड बाय एरिया, यूनिट क्या होगी? वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हम स्मॉल ए ले रहे हैं, स्मॉल ए या कैपिटल ए दोनों लेते हैं, तो फिलहाल हम लोग स्मॉल ए यूज करेंगे। एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एफ स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। एंड जो स्लिट विड्थ है, जो हम लोग जो सोर्स बनाएंगे होल की जगह कट करते, कट को स्लिट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लिट। उसकी जो विड्थ है डब्ल्यू, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुमने उसकी विड्थ डबल कर दी तो ज्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। इंटेंसिटी मींस लाइट होनी है ना, लाइट की एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। So this you have to remember, this and this. इंटेंसिटी का सिंबल आए लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आए रहता है सिंबल, करंट का भी आए लेते हैं कभी। आफ्टर दिस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का सिंबल एक्स होगा या डेल्टा एक्स होगा? फेज डिफरेंस का फाई होगा या डेल्टा फाई होगा? तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? सपोज ये सोर्स S1 है,
कोहेरेंट सोर्सेज है। यहाँ से जो वेव निकली वो पी पर पहुंची और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा पाथ उसका, ठीक है। तो इसने कितना पाथ ट्रेवल किया x1, इसने x2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? S1 and S2 are the two coherent sources. X1 is the path length of the wave through source S1. S2 is the path length of the wave through source S2. तो पाथ डिफरेंस जो है दोनों का डिफरेंस, सपोज ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, तो x2 माइनस x1 जो एक्स्ट्रा जो पाथ है, सपोज यहाँ से तुमने इसके इक्वल इतना कट कर लिया, तो ये इतना सेम हो गया, और एक्स्ट्रा जो ये वाली ट्रेवल कर रही है उसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इसके वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, इसके भी कुछ ऊपर नीचे वाइब्रेशंस होंगे कि यहाँ पर जो है फेज डिफरेंस निकालना है हमें। तो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट P, ठीक है। तो क्या रिलेशन आएगा इसका? फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2 pi by lambda divide 2 pi by lambda into x. तो 2 pi by lambda times of x is equal to phase difference at this point. मतलब ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस। तो सेंटर में कितना पाथ डिफरेंस होगा? देखो यहाँ पर दोनों का इक्वल पाथ होगा, x 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ द ये स्क्रीन है जहाँ पे हमें यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट वेव बनाएंगे या रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखेंगे। तो स्क्रीन पर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा। मिड पॉइंट पर जो इक्वल पाथ होता है तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है मिड पॉइंट पर। तो अगर हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो और 5 भी चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर हमने एक्स के लिए सॉल्व किया इसको तो लैम्डा एंड 2 पाई इधर आ जाएगा। एक्स के लिए अगर लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स के लिए लिख सकते हैं, या फिर एक ही याद रखो, बाद में वैल्यू पुट करके चेंज कर सकते हैं। सॉरी, एक लर्न कर लो बस। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ तो सेम रहनी, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो वेवलेंथ दोनों की सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। क्लियर? ऑलराइट, तो ये रिलेशन हमने 11th में भी पढ़ा था। किसी को याद है इसको क्या बोलते हैं? ये वाले पॉइंट को 2 पाई बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं? वहां पे के सिंबल यूज किया था 11th में ना, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं उसको, 2 पाई बाई लैम्डा। बट यहाँ पे हम कुछ नाम नहीं देंगे, विल मेंटेन लाइक दिस ओनली। इफ यू आर इंटरेस्टेड ये कैसे आया तो आई कैन टेल यू हाउ डू वी गेट दिस रिलेशन। देखो कैसे आएगा, ये देखो वन वेव की जो लेंथ होती है लैम्डा होती है ना, और उसका जो फेज जो एंगल के टर्म में लिखते हैं, एक ऑसिलेशन से, सपोज तुमने रोप को पकड़ा, यहाँ से एक ऑसिलेशन किया पूरा ऊपर, फिर नीचे, फर्दर नीचे, एक ऑसिलेशन करते हैं ना, तो डिस्टर्बेंस 1 लैम्डा कवर कर जाता है वो। दैट इज इक्वल टू 2 पाई, वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई, वन कंप्लीट ऑसिलेशन मींस 2 पाई के बराबर। तो लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई, 1 मीटर के लिए 2 पाई बाई लैम्डा फेज डिफरेंस, तो x मीटर के लिए इंटू एक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। देखो फिर से बताता हूँ, लैम्डा के लिए, लैम्डा मीटर के लिए 2 पाई का फेज डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होता, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई भी होता। तो लैम्डा पाथ लैम्डा मीटर के लिए 2 पाई, तो 1 मीटर के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, x मीटर के लिए ये 1 मीटर का है तो x मीटर के लिए इंटू एक्स हो जाएगा, दैट विल बी द फेज डिफरेंस। तो 5 is 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यूनिटरी मेथड से हम डिराइव भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड।
बट डेरिवेशंस आर नॉट आस्क्ड, तो इसलिए छोड़ सकते हो। ठीक है, अदर एग्जांपल देखें, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने ये दिया है, ये एग्जांपल दिया, देखो 2 ऑसिलेटिंग पिंस लिए, ऑसिलेटिंग नीडल्स ले ली, ये ऑसिलेट करे, ये वेव फ्रंट बनने ऐसे, उनके वेव फ्रंट जो इंटरेक्ट करेंगे पॉइंट पी पर, तो वहां पे रिजल्टेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें रिजल्टेंट मिलेगा, पार्ट डिफरेंस पहले मिलेगा।